हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। की हाल है? स्टार्ट करिए लेक्चर। सो वेलकम टू आवर लेक्चर, जिहदे विच आपां गल कर रहे सी कादे बारे। दिस वाज वी वर डूइंग वन सेकंड we were doing unit 2 and its first part, that is in this we were doing this was unit 2 तो part ਇਹਦਾ A ਸੀਗਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ XYZ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ XYZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ XYZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ x ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ y, ਆ z। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ XY ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, z ਰਹਿਣ ਦੋ ਹਲੇ। ਠੀਕ ਆ XY। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ठीक है। सॉरी x 1 यूनिट है तो y अपने को बराबर दे 2 यूनिट बन जाता। ठीक है। आप इनू वैल्यू नू किदां लिखते सीगे? ठीक है। इनू लिख देंगे आप XY 1 × 2। अगर किसी पॉइंट ते जाके किसी टाइम बाद इहदी पोजीशन आ वाली निकलती है 1 2 3 4, मान लो अपने को x4 मूव कर गया बट y उत्थे ही है। सो इहदा अपने को पॉइंट की बन जाता है, इस पॉइंट के कोआर्डीनेट की बनणगे? आप इदा ही लिखते होंगे ना, हाले तक इदा ही लिखते रहे हैं छोटे होंगे तो। इहदे कोआर्डीनेट की बन गए अपने को एक्स अपने को बन गया 4। ठीक है। तो वाई बन गया 2। सॉरी ये सेंसिटिविटी कोई पैन दी है दादी। ठीक है। सो की है, मान लो टाइम 1 सेकंड ते आ सी। ठीक है। 1 सेकंड बाद चीज़ इत्थे पहुँच गई। सो ये की है ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ XYZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ X ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ X ਤੇ Y ਦੋਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ X Y ਤੇ Z ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਔਰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਮਾਊਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਯਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਊਸ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू दी जिहड़े अपने कोल कोआर्डीनेट्स सी उहदे बेस ते ही आप स्टार्ट कीता। इफ ओनली वन आउट ऑफ 3 कोआर्डीनेट्स, 3 कोआर्डीनेट्स किहड़े? x y z। ठीक है। मीन्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल। The motion of an object is said to be 1 dimensional motion if only one out of these coordinates specifying the changing position। ठीक है। इन्हां तिन्ना कोऑर्डिनेट्स दे विचों कल्ला एक ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज होवे पोजीशन
चेंज होवे काहदे नाल जदों ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई आ उदों सिर्फ एक ही कोआर्डीनेट जिहड़ा अपने कोल चेंज होवे विद रिस्पैक्ट टू टाइम उस केस दे विच वी कॉल दिस वन डायमैंशनल मोशन। हुण जिहड़ी आपां एग्जांपल कर ली ठीक है भुल भुलेखे कर ली पर कर ली है ना इहदे विच की सी पहले विच अपने कोल की सी 1 2 ठीक है दूजे च की सी 4 2। हुण तुसीं देखो भी अगे आपां 2 डायमैंशनल ग्राफ लिया होया है एक प्लेन च लिया है ना सो इस ग्राफ दे विच अपने कोल की है एक चेंज हो रही है वैल्यू केड़ी आ 2 चेंज हो रहा वाई की वैल्यू चेंज हो रही है यस और नो नहीं एक सैकेंड ते इन्नी सी सैकेंड ते इन्नी आ गई ठीक है एक सैकेंड बाद अगले ते इत्थे पहुंच गई वैल्यू। सो चेंज किहड़ा कोआर्डीनेट होया कल्ला एक्स दैट इज 1 2 4 चला गया। सो जदों अपने कोल एक ही एक्सिस चेंज होवे उस चीज़ नूं असीं बोलदे हैं वन डायमैंशनल मोशन ठीक है। मीनस जदों अपने कोल स्ट्रेट लाइन बनती है सीधी ये स्ट्रेट लाइन बने बट ये वाली थले आ जाइए उत्ते गंद पैंदा स्ट्रेट लाइन बनी है बट कादे किसी एक एक्सिस दे पैरल हुण मान लो भी आ थले वाला एक्स एक्सिस हैगा इहदे पैरल अपने कोल मोशन ने आ लाइन बनाती ऑब्जेक्ट पहला इत्थे सी हुण फिर इत्थे गया फिर थोड़े टाइम बाद इत्थे पहुंच गया बट जिहड़ा इहदा मोशन आ वो एक्स दे स्ट्रेट बनया होया ठीक है मतलब कल्ला एक्स वेरी कर रहा वाई वेरी नहीं कर रहा ना जैड वेरी कर रहा जैड अपने कोल जिहड़ा तीजा एक्सिस है। सो इस तरह के मोशन नूं असीं कहने आ वन डायमैंशनल मोशन कहते इन सच ए मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन or a well-defined path. Therefore, one-dimensional motion is sometimes known as rectilinear or linear motion. लिख लियो ये लाइन ना लिख लियो in such a motion the object moves along a straight line or a well-defined path. अगली लाइन therefore one-dimensional motion is sometimes known as rectilinear or linear motion. ठीक है फॉर एग्जाम्पल कहते जो अपने को ट्रेन मूव करती है कोई ठीक है ट्रेन मूव करती है तो ट्रेन दी पटरियां सीधियां होंदियां एग्जैक्टली स्ट्रेट सो वो वाला मोशन जिहड़ा है उहनूं असीं कह सकते हैं दैट इज़ द मोशन इन स्ट्रेट लाइन ठीक है मोशन इन वन डायमैंशनल क्यों क्योंकि ट्रेन माड़ी मोटी भी इधर उधर नहीं होंदी सीधी स्ट्रेट लाइन ते जाती। सो बस इदां दियां कोई भी एग्जाम्पल्स लै सकते हो ठीक है। सो सैकेंड बट मोशन शुड बी इन वन लाइन वर्टिकली जो आप कोई चीज़ सुट्टी दी है मान लो ऐ चीज़ सुट्टी मैं थले तो चीज़ इधर उधर जाती है नो चीज़ इधर उधर नहीं जाती चीज़ सीधी थले जाती है। मान लो मैं एक वट्टा उपरों सुट्टिया एक अपने को स्टोन का पीस ला लो पत्थर का सो मैं उत्तों सुट्टिया थले ताड़ देनी वो फ्लोर पर डिगू बट ड्यूरिंग द फॉलिंग मोशन इट ट्रेसिज ए स्ट्रेट लाइन पाथ। सो उहदे विच की है अगर ग्राउंड नूं आपां एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस लै लीए तो Z एक्सिस लै लिया आप उपरला तो कल्ला एक ही एक्सिस वेरी कर रहा ना एक्स वेरी कर रहा ना वाई वेरी कर रहा ओनली Z इज वेरिंग ठीक है। सो भी अपने को वन डायमैंशनल मोशन हो जाएगा ठीक है। सो सैकेंड है अपने को इहदे विच वन डायमैंशनल मोशन तो बाद टू डायमैंशनल मोशन ठीक है। टू डायमैंशनल मोशन बेटा वो इदां ही है तुसीं ऐ मान लो भी जिद्दां इत्थे बना लिया है ना अगेन पहला वांगू ठीक है ये अपने को वाई एक्सिस बना लिया सी एक्स हो गया ये तो अपनी मुढ़ कदीमा की आदत है जो भी आप ग्राफ बनाने सो वी टेक दी हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स एक्सिस एंड जी वर्टिकल लाइन है वी टेक दैट एज वाई एक्सिस। सो हुण इहदे च ध्यान नाल देखो की है कि अगर पार्टिकल आ मेरा पॉइंटर पार्टिकल है ना अगर ये पार्टिकल है कोई कर्व ड्रा कर रहा या कर्व ड्रा करदा करदा ये तो सैमी सर्कल हो गया चलो सैमी तो आप फुल सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋਕ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ओरिजिन ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ओरिजिन बोलते हैं ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੀ एक टाइम बाद इत्थे चली गई एक टाइम बाद इत्थे चली गई एक इत्थे चली गई फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद असीं रीडिंग लई गए ये तो बई सर्कल ड्रा कर लिया इहने इहदा जिहड़ा पाथ सी इहने सर्कल ड्रा कर लिया। हुण होया कि तुसीं देखो इस पोजीशन ते टैक्नीकली ग्राफ पेपर ते अगर बनाओ ठीक है तो इस पोजीशन ते पहला एक्स नहीं वेरी कीता कल्ला वाई वेरी कीता
ठीक है। इत्थे अपने कोल एक्स भी थोड़ा घट गया, वाई वध गया, फिर वाई दे आ गया, ठीक है। एक्स इन शॉर्ट इत्थों इत्थे जांदे आ, इत्थों इस पार्टिकल तो इस पोजीशन तो आ पार्ट ट्रेस करदे आ, इस पोजीशन ते पहुंचदे आ साडे कोल एक्स भी वेरी कर रहा ते वाई भी वेरी कर रहा, कॉन्स्टेंट कोई नहीं रह रहा, दोने वेरी कर रहा मतलब बदल रहा, ठीक है। दोने ही जिहड़े अपने कोल कोआर्डीनेट्स है ये वेरीइंग हैगे। डन। इफ बोथ ऑफ दीज कोआर्डीनेट्स आर वेरीइंग then we call this motion as two dimension। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ we call one dimension, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ two dimension। ਸੋ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਿੰਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤੋਂ ਆ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ z ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਤੇ y ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। डेफिनेशन पढ़ लो, यही कहती है, कहता if 2 out of 3 coordinates specifying the changing position of object with respect to time, ठीक है। जे अपने कोल दो कोआर्डिनेट तिन्ना चों कोआर्डिनेटां चों जेड़े स्पेसीफाई कर रहे हैं पोजीशन, ठीक है, चेंजिंग पोजीशन विद द ऑब्जेक्ट, कि अपने कोल जिहड़ी पोजीशन चेंज हो रही है। सो उस केस दे विच अपने कोल असीं हुण कहांगे टू डायमेंशनल मोशन। सो इन सच ए मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो तां ये प्लेन च मूव कीती है। मान लो एक सीडी है ना, अपने कोल सीडी नूं आपां ऐ रख लिया, उत्ते पानी दा ड्रॉप रख लो, पानी दा ड्रॉप ऐ मूव करी जाऊगा जिद्दां भी डायरैक्शन च मूव करूगा, ठीक है। कदे लैफ्ट नूं जाऊगा, राइट नूं जाऊगा, फिर घुम जूगा। जां उत्ते कोई कीड़ी मूव कर रही है, कोई कीड़ी छोटी, ठीक है, वो कीड़ी अगर सीडी के उत्ते मूव कर रही है, तुम देखोगे वो कदे इधर उधर जाऊगी, बट द मोशन ऑफ एन एंट विल बी इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लेन। वो अपने कोल करवी लीनियर करवी होगा मोशन, लीनियर नहीं कहांगे, पर वो होगा काहदे च टू डायमेंशनल, ओनली ऑन द सीडी, ओनली ऑन द प्लेन ऑफ सीडी, ठीक है। सो ये अपने कोल है एग्जाम्पल च आपां कह सकते हैं, ठीक है, कि अपने कोल जिद्दां पूल खेडते हैं ना, बिलियल बोर्ड या कैरम बोर्ड खेडते हैं, कैरम बोर्ड वैन यू प्ले कैरम बोर्ड, ठीक है, तुसी उहदे विच भी आ सेंटर हुंदा, इत्थों तुसी अपने स्ट्राइकर दे नाल मारदे हो, सारियां जिहड़ियां गीटियां वो खिलर जांदियां है ना। सो कैरम बोर्ड इज़ बेसिकली ए गेम ऑफ टू डायमेंशनल कोलिजन। सो कोलिजनस जिहड़ियां अपनियां वो थर्ड फोर्थ यूनिट च होणगियां, ठीक है, वो आप आगे डिस्कस करांगे। सो थर्ड अपने कोल है, आपां इहनूं इत्थे बंद करिए टू डायमेंशन नूं। नैक्सट है अपने कोल टू डायमेंशन तो बाद थ्री डायमेंशन। सो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगना। वन डायमेंशन कल्ला एक्स वेरी कर रहा सी, टू डायमेंशन वी हैड वेरिंग एक्स एंड वाई, एंड इन थ्री डायमेंशन वी हैव टेढ़ी लाइन बन गई, फिर एक्स वाई एंड जेड तिन्ने ही वेरी कर रहे। ये ला लो जिदा एक बॉल है, फुटबॉल या बॉल, मेरे हाथ वाली देख लो, ठीक है। सो जिवें आ अंगूठा है, इस वेले अंगूठे की पोजीशन वेरी कर रही है, ਉਹਦਾ एक्स भी चेंज हो रहा, वाई भी चेंज हो रहा, एंड जेड इज आल्सो वेरिंग। सो वी डिफाइन इट एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन इफ all the three coordinates specifying the position of the object change with respect to time, ठीक है। जे सारे ही कोआर्डीनेट जिहड़े आ वो चेंज होने विद रिस्पैक्ट टू टाइम, उदों अपने कोल थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। सो ऑब्जेक्ट जो स्पेस च मूव करता, जिदा अर्थ मूव करती है, ਜਾਂ सैटेलाइट है, ਜਾਂ सन है, एवरीथिंग इज इन थ्री डायमेंशन। तुसी जो कॉलेज आ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, है ना, जो तुसी रूम तो अपने तो किचन तक भी जाने हो, then this is also the motion in three dimension. No, this is the motion in two dimension. But when you jump, जो तुसी jump करते हो, jump करके जाने हो या run करके, वो तो मोशन थ्री डायमेंशन हो जाता, क्योंकि प्लेन च तुसी मूव कर ही रहे हो, ठीक है, एक्स वाई तुसी जंप भी कर रहे हो, घटदा वधदा जांदा। सो थ्री डायमेंशन नूं तुसी समझ लो, जिहड़ियां अपनियां बॉडीज़ आ, ठीक है, आपां स्पेस दे विच तीन डायमेंशन, तीन कोआर्डीनेट घेरे आ, एक्स भी ते वाई भी ते जेड भी। सो अपने तिन्ने वेरी कर सकते, ठीक है। सो डायमेंशनस नूं आपां इत्थे बस करिए, अगला आपां देखदे हां की है स्केलर्स एंड वैक्टर्स। आहो देखो
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ਲੈਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੈਕਚਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਸੌਰੀ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈਏ, ਲੈਂਥ, मास, टाइम, ठीक है, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, मोमेंटम। इन्हां तो भी पहला आउंदियां जिहड़ियां वेलोसिटी, स्पीड, अगे इंट्रोड्यूस होनी है, पढ़ भी ली होनी है हले तक छोटिया क्लासा च। एक्सेलरेशन, ठीक है, अगे होंदी है डीसैलरेशन भी होंदी है, ते डीसैलरेशन स्पैलिंग चेक कर लियो, ये शायद गलत हो गए। दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज। मोर इम्पोर्टेंट, एनर्जी तो हम भूल ही गए बाबा। एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन्नियां बड़ियां मैं क्वांटिटीज़ लिखतियां। ठीक है, जिन्नियां भी क्वांटिटीज़ हैं इन्हां नूं असीं दो चीज़ां च डिवाइड करते हैं, स्केलर्स एंड वैक्टर्स। ठीक है, हुण स्केलर ते वैक्टर दा मतलब की है? सीधा सीधा मतलब है, वैन आई राइट स्केलर, ठीक है, इट मीनस माई फिजिकल क्वांटिटी, जिहड़ी मेरे कोल फिजिकल क्वांटिटी है इस वेले, ठीक है, वो स्केलर कदों होगी? फिजिकल क्वांटिटी, द स्केलर्स क्वांटिटीज या स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव, इतने मैं हैविंग लिख देना, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, होर कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल मास है, मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है होर, है ना। सो स्केलर ते वैक्टर दे विच जिहड़ा डिफरेंस दा अपने कोल जिहड़ा डिफरेंस है मेन, वो डिफरेंस दा पैरामीटर जिहड़ा आ उहनूं इंट्रोड्यूस करना जां उहनूं डिस्कस करना जरूरी है। आपां पहलां उहदे ते आईए। सो वैक्टर दी डेफिनेशन भी लिख लो। वैक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज, तुसीं ऐ लिख सकते हो, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड as well as some direction। और जी सम डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन मैंने दिशा, ठीक है, डायरेक्शन सही समझ रहे हो। सम डायरेक्शन मीनस एक डेफिनेट अमाउंट होगा, नॉन डायरेक्शन होगी, मतलब जानते होवांगे आप डायरेक्शन। डेफिनेट की वैल्यू आप डेफिनेट लिखने DEFINITE। ठीक है, सो हुण तुसीं ये देखो भी, तुसीं कहोगे सर स्केलर ते वैक्टर दे विच मेन फर्क की आ गया? वैक्टर्स ये उदां दीयां क्वांटिटीज़ ने पहले नंबर ते जिन्हां दा मैग्नीट्यूड भी है ते जिन्हां दा अपने कोल डायरेक्शन भी हुंदी है। स्केलर्स दी अपने कोल डायरेक्शन नहीं हुंदी, सिर्फ मैग्नीट्यूड हुंदा। हुण करदे आं आपां, थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मूव कर रहा, मेरी एक स्पीड है, ठीक है, स्पीड की है स्केलर, वैक्टर की हो जूगी, सॉरी वेलोसिटी की हो जूगी अपने कोल वैक्टर। सो इस चीज़ को आप समझते हैं। हाँ जी, स्पीड ते वेलोसिटी की गल चल रही सी। सो आप पहले इन्हूं समझ लीए, जिहड़े स्केलर हुंदे ने, स्केलर्स जिहड़े अपने कोल बेसिकली ये मान लो भी तुहाडे कोल किते इरेजर होगी, किते
आ तो लाइन आप लिख लिया ना, ये मिटाउन लगा तो सो सो आ जाओ। सब तो पहला तो स्केलर की गल दोबारा कर लीए। स्केलर जेडे अपने कोल इहदे बारे मैं तुहानूं दस्सिया भी ओनली मैगनीट्यूड हुंदा, ठीक है। अगर अपने कोल इहदा कल्ला मैगनीट्यूड हुंदा, फॉर एग्जांपल जदों अपने कोल कोई नंबरस ने है ना 1 2 3 4, दीज आर बेसिकली स्केलर्स, ठीक है। सो जिद्दां आपां नंबरस नूं ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिन्नियां भी स्केलर क्वांटिटीज़ आ उन्होंने असी ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिकली, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड असी कुछ भी कर सकते, ठीक है, बड़े आराम नाल जिवें सिंपल हुंदा। सो स्केलर्स दे विच जिहड़ियां अपने कोल एग्जांपल्स ने, स्केलर्स दे विच अपने कोल एग्जांपल्स ने मेनली मास हो गया, ठीक है। मास तो बाद अपने कोल सिंपली लेंथ नूं लिख लो। टाइम भी अपने कोल स्केलर हुंदा आ, ठीक है। जे किसी ऑब्जेक्ट दा आपां डिस्टेंस कवर्ड लिखना होवे तां इह भी अपने कोल स्केलर ही है, ठीक है। कोई स्पीड लिखनी होवे, किन्ने डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कवर्ड है तो टाइम है, इन्हां दोनों की रेशो जिहड़ी है स्पीड हुंदी है अपने कोल, ठीक है। स्पीड की होंगी है बेसिकली डिस्टेंस बाय टाइम ही होंगी है ना। सो ये जी चीज़ है इनू भी असी स्केलर ही लिख सकते हैं। सो मीनस इन्हों की कोई वैल्यू आ बट इन्हों की कोई डायरैक्शन नहीं है। सानू नहीं पता भी स्पीड किस डायरैक्शन च, सानू ये पता भी हाँ कोई बॉडी मूव कर रही है, उन्हें इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर 15 घंटे च कढ़ गया, ठीक है। इट मीनस कि 1500 किलोमीटर अगर 15 आवर च कढ़ गया, वी हैव द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो आपां ये कढ़ लें। सो समझ गए होवोगे हले तक कोई डायरैक्शन नहीं है। डायरैक्शन का मतलब की है हुण आपां हुण देखांगे। स्केलर तो ये चीज़ आ गई अपने कोल, ठीक है। हुण आपां वैक्टर की गल करते हैं अगे। इनू आप स्केलर नूं आपां सिंपली लिख सकते हैं जिद्दां लिखिया ना, एवें लिख सकते हैं। इसलिए आपां नूं कुछ नहीं पाउणा पैंदा जो रिप्रजेंट करना। ये तुहानूं ज़्यादा समझ आऊगी हुणे। एक कर थोड़ा जिहा चलो मैं सारी डिलीट करती। पेन है अपने को। सो नाउ अगला अपने को की सी क्वांटिटी, वी हैड नेक्स्ट क्वांटिटी वैक्टर। सो वैक्टर के बारे आपां की गल कीती सी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरैक्शन। एक गल मैनू दस दिओ भी अखर छोटे तो नहीं लग रहे, क्योंकि मैं यदि स्क्रीन ते वड्डी ते लिख रहा इस करके मेरे तो छोटे लिखे जा रहे। आई विल ट्राई कि मैं वड्डे लिखा। सो नैक्सट अखर सारे वड्डे होंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरैक्शन मतलब तुसी इन्हां नूं जिद्दां समझना चाहो कि फॉर एग्जाम्पल्स तो ही समझोगे तुसी। एग्जाम्पल लईए आपां पहलां एक एग्जाम्पल्स की होणगियां इहदियां। मान लो वी हैव डिसप्लेसमेंट, ठीक है। डिसप्लेसमेंट का मतलब की है, अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट इत्थे पिया, ठीक है, मैं उन्होंने ऐ स्लाइड करदा 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 लै गया, इत्थे पहुँच गया, ठीक है। हुण मान लो भी आ लेंथ मेरे को जी शॉर्टेस्ट लेंथ स्ट्रेट लाइन च लेना चाहिए सी मैनू। आ स्ट्रेट लाइन वाली लेंथ है, ये मेरे को 1 मीटर बनती है, ठीक है। बट जे मैं इहदे अलोंग जावां करवी पाथ दे तो ये मेरे को अराउंड 2 मीटर्स बन जाती है। मान लो डबल होगी, मान लो, ठीक है। सो मैं की कहूँगा कि आ वाले पॉइंट ने इत्थे पहुँचण दे लई, ठीक है, पाथ तो यही लिया सी ना। सो उन्हें कितना ट्रैवल किया 2 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट समझो 2 मीटर ट्रैवल किया। बट असल दे विच जे आपां हुण इत्थे एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस बना दिए, ज़्यादा समझ आऊगी, ठीक है। तो पहला उहदा कोआर्डीनेट इत्थे सीगा एक्स ते वाई दी वैल्यू,
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਤੇ y ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਹ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ distance between two positions of a particle in motion। ठीक है, सो ये अपने को डिस्प्लेसमेंट बन गई। सो तुसी ये डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो। हुण तुसी ध्यान नाल देखो, डिस्टेंस दा तां मेरे कोल कोई डायरेक्शन नहीं सी, बट डिस्प्लेसमेंट की मेरे को एक डायरेक्शन है कि एक्स इन्ने तो वाई इन्ने तक ये चेंज होया। ठीक है, सो आ इधरों इन्ना चेंज होया, एक्स इन्ना चेंज सॉरी वाई सॉरी एक्स इन्ना चेंज होया, वाई इन्ना को चेंज होया। सो इन्हां दोनों नूं क्लब करके जे लिखांगे, आ मेरे को एक्स बन गया, आ मेरे को वाई बन गया, इन्हां दोनों नूं क्लब करांगे तो अपने को आही वैक्टर बन जूगा, आही एक लाइन बनूगी। ये असी ये नाल लिखांगे भी एक्स वाल इन्नी डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन वाल इन्ना मैगनीट्यूड। सो टोटल कितना बन गया आह। सो जी आ लेंथ बन जूगी, उन्होंने असी रिप्रजेंट करांगे इदा एरो पा के। सो दिस लेंथ विल बी ए वैक्टर। क्यों? क्योंकि इहदा मैगनीट्यूड भी हैगा आ, बट इहदी डायरेक्शन भी हैगी अपने कोल, एक्स ते वाई दोनों की कंबाइंड डायरेक्शन भी हैगी। सो इस चीज़ नूं असी बोलते हैं वैक्टर। ठीक है, मेरे ख्याल नाल समझ आ गया होना चाहिए हुण तक। ना समझ आया दोबारा मैनू दस्सिओ, फिर मैं दोबारा किसी होर एग्जाम्पल नाल दसूँगा। इदां ही अपने कोल की हुंदा सी, हुण तुहानूं मेजर जे फर्क दस दिना। अगलियां क्वांटिटीज़ जिहड़ियां अगलियां स्लाइडां आपां नूं शायद इत्थे काम मुक जे। सो हुण देखो अपने कोल दो चीज़ां आईयां सी ना, स्केलर वैक्टर उत्ते लिखिया ही होया, चलो इन्हूं लिखण दी लोड़ ही नहीं। नैक्सट लिखते हैं आपां डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मटेरियल थोड़ा दोबारा स्लाइड दी आ जाओ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की सी इथों स्टार्ट होए आपां इस पॉइंट ते पहुंच गए, आ मेरे को इनिशियल पॉइंट है, आ मेरे को फाइनल पॉइंट है। ठीक है, इतने इनिशियल पल ने। सो आ जिहड़ा पाथ है, इन जिन्ना ये पाथ लेंथ जी इस पाथ की लेंथ है, ठीक है, इसनों असी बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। बट जे आ पॉइंट ते आ पॉइंट तो मैं इहदी डिस्प्लेसमेंट देखा, ये मतलब किन्ना क प्लेस उधर नूं होया, जां कह लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाए। ठीक है, शॉर्टेस्ट distance, this will be displacement। ठीक है, सो डिस्टेंस दी अपने कोल डायरेक्शन कोई नहीं होंदी। सो डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हुण अगे चलिए। टाइम स्केलर सी ना, टाइम स्केलर सी। सो अगर डिस्टेंस बाय टाइम देखिए,
ठीक है। ते की लिखते हुन्ने आपां स्पीड, हाँ पिछली स्लाइड ते इत्थे ही हो जाऊगा। डिस्टेंस बाय टाइम इनू की बोलते हैं आपां स्पीड, ठीक है। स्केलर बाय स्केलर, स्पीड विल बी स्केलर अगेन, ठीक है। सो स्पीड भी अपने कोल की आ गई स्केलर क्वांटिटी। हुण नैक्सट चलिए डिस्प्लेसमेंट, अगली स्लाइड ते चलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक टाइम इंटरवल दे विच किन्ना बॉडी मूव कीती, किन्ना डिस्टेंस ट्रैवल कीती स्पीड, एक टाइम इंटरवल दे विच किन्ना बॉडी डिस्प्लेस होई, ठीक है। इस चीज़ नूं असीं की बोलांगे, किन्ना बॉडी डिस्प्लेस होई, इस चीज़ नूं असीं बोलांगे वेलोसिटी, किन्ना बॉडी डिस्प्लेस होई। मान लो भी आ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी ते ये बंदा इन्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस च 2 मिनटां च पहुंचे, 2 मिनट्स, ठीक है। तो आपां कहांगे आफ्टर 1 मिनट वट वॉज द स्पीड, तो आप SI च करदे हुन्ने आ, 2 मिनटां च 120 सैकेंड हुंदे अपने कोल, ठीक है। सो आप कैलकुलेट कर लांगे। सो आ डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम च किन्नी हुई, दिस इज वेलोसिटी। आ टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम च किन्नी हुई, दिस इज वेलोसिटी, अगर ये यूनीफॉर्म मोशन है, ठीक है। सो ये चीज़ आपां याद रखनी है। सो वेलोसिटी जिहड़ी है अपने कोल, दिस इज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी है ये की है वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो आपां नूं हुण की समझ आया, आपां बेसिकली स्केलर ते वेक्टर डिफाइन कीते, डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट नूं समझिया, ते स्पीड ते वेलोसिटी नूं थोड़ा थोड़ा समझिया, थोड़ा थोड़ा समझिया कि स्पीड की डेफिनेशन देख ली, वेलोसिटी की डेफिनेशन देख ली। स्पीड अपने को स्केलर क्वांटिटी किद्दां वो भी समझ लिया, वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने को वैक्टर है तो वैक्टर नूं स्केलर नाल डिवाइड करिए तो वैक्टर ही रह जाता। सो ये भी अपने कोल की आ जाता, इनू असीं बोल सकते हैं दिस इज आल्सो ए वैक्टर क्वांटिटी। इत्थे एक बार गल खत्म करते हैं, नाल आपां हुण की करांगे, जिहड़ी वेलोसिटी है, ठीक है, उहदियां आपां टाइप्स देखणियां हैगियां आ। सो हुण आपां इन्हां नूं थोड़े डिटेल्स कर लीए, ये आपां इन्हां दीयां डेफिनेशंस देख लियां, ठीक है। चलो बेटा जिहड़ी स्पीड है, ठीक है, स्पीड इज बेसिकली distance by time, means in a time interval how much distance is traveled. So speed अपने को 3 तरह दी है, ठीक है, 3 types basically। types word यूज कर लिया इहदे लई मैं, इहदे लई है एक अपने को यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, दूजी हैगी वेरिएबल स्पीड, तीसरी आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। इन टर्म्स नू समझना चाहिए आपां, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, प्रॉब्लम्स भी करने हैं। सो जिहड़ी यूनीफॉर्म स्पीड टर्म है, इहदा मतलब ये है भी इफ ए बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, जिहड़ा मर्जी पाथ है, आप चलो एक स्ट्रेट लाइन ही लै लैंदे, फॉर ए स्ट्रेट लाइन पाथ स्पीड ते वेलोसिटी सेम चीज़ हो जाती है, ठीक है। बस इन्ना आ भी स्पीड नूं लिखण लई आपां नूं वैक्टर नहीं पाउणा पैंदा, वेलोसिटी लई आपां नूं डायरैक्शन देनी पैंदी। चलो सो इस थां ते की होऊगा अपने कोल, कदी गल कर रहे सी यूनीफॉर्म स्पीड की। सो यूनीफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि अगर 10 सेकेंडां दे विच इन 10 सेकेंड्स आ डिस्टेंस इस बॉडी ने इत्थों तक ट्रैवल किया है, ठीक है, तो 10 सेकेंड्स दे विच
जे मैं 2-2 सेकंड का टाइम लाना 5 इंटरवल बन गए, ठीक है। इफ वी डिवाइड दिस 10 seconds into intervals of 2 seconds, then we have 5 intervals, time intervals. So it means uniform speed means in each of interval, in each of time interval use कर सकते हो, ठीक है। speed was same, ठीक है। means सेम इंटरवल्स दे विच, अगर सेम इंटरवल्स दे विच इन सेम टाइम इंटरवल्स सेम डिस्टेंस is traveled, then we can write this is speed is uniform speed, ठीक है। सैकेंड आ गई अपने को वेरीएबल। वेरीएबल स्पीड ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ कि आ 10 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਇੰਟਰਵਲਸ ਸੀਗੇ, we had 5 intervals, time intervals. ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੇਰੀ ਕਰ ਗਈ, स्पीड चेंज हो गई इंटरवल्स दे विच। एक इंटरवल च थोड़ी है, दूजे च थोड़ी ज़्यादा हो गई, तीजे च मीडियम जी हो गई, फिर ज़्यादा घट गई। सो इफ बॉडी ट्रैवल्स, ठीक है, आप कह लो इफ बॉडी ट्रैवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस बिटवीन, ठीक है, सिमिलर टाइम इंटरवल्स, तो उस केस दे विच अपने कोल वेलोसिटी इज वेरीएबल कि डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कीता है इन दीज इंटरवल्स, जेडे कि सेम सीगे, 2-2 मिनट के इंटरवल सी, सेम इंटरवल्स भी लिख सकते हैं। उस केस दे विच अपने कोल जिहड़ी वेलोसिटी स्पीड हैगी है वो अपने कोल उहनूं बोलते हैं वेरीएबल स्पीड, ठीक है। सो तीजी अपने कोल हैगी है एवरेज स्पीड। हुण जदों स्पीड वेरीएबल हो जाए तो एवरेज आपां कड्ढनी होवे, एवरेज स्पीड दा आपां किद्दां कड्ढांगे? एवरेज स्पीड कड्ढण दा सिर्फ इक्को तरीका, मान लो भी मेरे को सारी लेंथ आ, है ना, इस डिस्टेंस चों इत्थे स्पीड कुछ हो रहा है, इत्थे कुछ हो रहा है, इत्थे कुछ हो रहा है, इत्थे कुछ हो रहा है। सो दीज आर डिफरेंट, बट जे मैं एवरेज कड्ढनी है मैं की करूँगा? सारे मैनू ये कहणगे भी सर ऐ करते हैं सारियां स्पीड्स का एवरेज ले लैंदे आ। नो, असी सारियां स्पीड्स का एवरेज नहीं लेना। वी विल डू, असी की करांगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। सो ये अपने को एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। सारा डिस्टेंस चों किन्ने टाइम च ट्रैवल किया आप डिवाइड कर देना। जिदा आप स्पीड्स कढ़िया एवें ही आप वेलोसिटीज़ कढ़ लेनी। स्पीड नू बेटा आप एस नाल लिखते हैं, वेलोसिटी नू आप वी नाल लिखते हैं। एंड वैन एनी क्वांटिटी इज वैक्टर क्वांटिटी वी पुट ए वैक्टर ऑन इट। इत्थे करके वड्डा करके दिखाना, ठीक है, वैक्टर पाना। सो वी दे उत्ते वैक्टर पैंदा, ठीक है। सो अज दे लैक्चर च आप इन्ना ही करते हैं। कल नू आपां की करना है, मेजर थिंग जिहड़ी हुण आपां स्किप कर दित्ती वो आपां करांगे कि कल नू याद करवाउणा है नैक्सट लैक्चर दे विच डिफरेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो नैक्सट लैक्चर च मिलते हैं आप। स्टे हैल्दी, स्टे होम, ते अपनी सेहतां दा ख्याल रखियो।
ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਅਟੈਂਟਿਵ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ, ਗॉड ब्लेस यू।